हरे कृष्णा। आज शरद पूर्णिमा का पावन दिवस है। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। वैसे कई वैष्णव ऐसा भी मानते हैं कि ये सारे वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिवस है, सबसे बड़ा उत्सव है। तो ये उत्सव क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आज हम सुनेंगे। इसके पहले हम श्री ब्रजधाम महिमामृत गाएंगे। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोहन। श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। कालिंदी जमुना जय जय महावन। केशी घाट वंशी वट द्वादश कानन। केशी घाट वंशी वट द्वादश कानन। जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंदन। जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंदनंदन। श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण। श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण। श्री दामादि जय जय धेनुवत्सगण। श्री दामादि जय जय धेनुवत्सगण। वृषभानु जय कीर्तिदास सुंदरी। जय वृषभानु जय कीर्तिदास सुंदरी। जय पौर्णमासी जय आभिर नगरी। जय पौर्णमासी जय आभिर नगरी। जय जय गोपीश्वर वृंदावन माज। जय जय गोपीश्वर वृंदावन माज। जय जय कृष्ण सखा
बटुद्विजराज जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वासियत जान जय द्विज पत्नी जय नागकन्यागण भक्ति तेजहार पाइलो गोविंद चरण श्रीरास मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्वमनोरम जय जयोज्ज्वल रस सर्वरस सार परकिया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार श्री जानवपाद पद्मा कोरिया स्मरण दीन कृष्ण दास कोहे नाम संकीर्तन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोहन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha Gokulananda, Radha Gokulananda Radhe. Jaya Radha Gokulananda, Radha Gokulananda Radhe. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Gauranita, 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 Jaya Gauranita. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Om Vishnupad Paramhans Parivrajakaacharya Ashtottara Sat. His Divine Grace Abhay Charana Arvinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Ananta Koti Vaishnav ki Jai. Shri Shri Radha Gokulanand ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai ki Jai. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai ki Jai. Shri Sharat Purnima Mahotsav ki Jai. Shri Vrindavan Dham ki Jai. Shri Kartik Maas ki Jai. Nitai Gaur Premanande. Samaveta Bhakta Vrind ki Jai. Samaveta Bhakta Vrind ki Jai. Samaveta Bhakta Vrind ki Jai. Shri Shri Guru Gauranga ki Jai. Hare Krishna. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Svapadantikam Vande Ham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Vishakhanvitamscha Namo Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. अब वो दिन आया है जिसकी प्रतीक्षा हम साल भर करते हैं, शरद पूर्णिमा।
वैसे ये आश्विन महीने का अंतिम दिन है और इसके बाद वाले दिन से कार्तिक महीना प्रारंभ होता है। तो शरद पूर्णिमा का दिवस और और कार्तिक मास, ये दोनों हमारे लिए कितने मधुर हैं और महत्वपूर्ण हैं, उत्सवों से भरे हुए हैं और एक आनंदमय भक्तिपूर्ण वातावरण निर्माण हो जाता है और अपने आप ही एक उल्लास, एक हर्ष सा और एक विशेष प्रेरणा भक्ति के प्रति हृदय में जागृत होती है। वैसे शरद पूर्णिमा का महोत्सव हम आज मना रहे हैं। तिथि तो कल प्रारंभ हुई, लगभग मेरे ख्याल से 5:45 बजे या कुछ ऐसे। तो बाहर की दुनिया में अर्थात जो वैष्णव नहीं हैं वो शरद पूर्णिमा को कल मनाते हैं, परंतु हम आज मनाते हैं क्योंकि ऐसे बताया जाता है कि वैष्णव दिनदर्शिका में जब तिथि का स्पर्श सूर्योदय से होता है या अगले तिथि से होता है, सूर्योदय का या दूसरे तिथि से होता है, तो वो तिथि को हम वहाँ पे नहीं मानते हैं। तो शरद पूर्णिमा प्रारंभ हुई, वैसे तिथि प्रारंभ हुई कल शाम को, परंतु आज ब्रह्म मुहूर्त के समय ये तिथि थी, इसलिए हम इसे आज मानते हैं इस तिथि को। तो वैसे आश्विन महीना का जो अंतिम दिन है पूर्णिमा, बताया जाता है, श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम ग्रंथ में कहते हैं कि ये दिवस संपूर्ण वर्ष का सबसे सुंदर दिवस माना जाता है और इस दिन पे जो पूर्णिमा के चांद की किरणों का प्रभाव है वो बहुत ही विशेष माना जाता है। शरीर के लिए भी पौष्टिक है, सुखप्रद है और मन और आत्मा के लिए भी बहुत संतोषजनक है। तो आध्यात्मिक जीवन के लिए भी ये बहुत ही लाभदायक है। इसलिए चांद का स्थान इस दिन पर है। तो ऐसे एक प्रथा हुई है काफ़ी लंबे समय से कि शरद पूर्णिमा के रात्रि को भक्त छत पे खीर रखते हैं, दूध से बना हुआ चावल का खीर, और फिर वो चांद की किरणों के लिए खुला रहता है वो। और ऐसे बताया जाता है कि फिर उस खीर में जब चांद की किरणें आ जाती हैं तो फिर वो बहुत ही पौष्टिक हो जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है, अमृतमय हो जाता है और शरीर, मन और आत्मा के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगले दिन प्रातः काल में प्रसाद के रूप में तो हमारे संस्था के हर एक मंदिर में भी ऐसे किया जाता है। इस दिन को हम शरद पूर्णिमा कहते हैं, परंतु ये अनेक नामों से भारत में जाना जाता है। ये दिन कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में आदि जाना जाता है, अनेक स्थानों में भारत में भी। और इस दिन पे लक्ष्मी देवी की उपासना करते हैं वैदिक सभ्यता में, इसलिए बंगाल में इस दिन को लक्ष्मी पूजा कहते हैं और लक्ष्मी देवी को वो मानते हैं। वो ऐसा भी मानते हैं कि लक्ष्मी दिन का जन्म इस दिवस पर हुआ था। साथ साथ में ये फसल काटने का समय भी है, इसलिए इसे नवान्न पूर्णिमा भी कहते हैं, कौमुदी पूर्णिमा भी कहते हैं। उड़ीसा में इसे कुमार पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि जो कुमारियां हैं वो अच्छे पति को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती हैं। और ये कुमार अर्थात कार्तिकेय, स्कंद, शिव जी के पुत्र, तो वो ऐसे आशा करते हैं कि हमें अच्छा कोई पति मिल जाए।
तो ऐसे तो अन्य बहुत सारे नाम हैं, परंतु कृष्ण भक्तों के लिए इसका महत्व विशेष रूप से ये है कि इसे रास पूर्णिमा के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि इसी रात्रि पर श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास लीला की थी वृंदावन में, और ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण लीला है। वैसे बताया जाता है कि लक्ष्मी देवी शरद पूर्णिमा की रात्रि को भ्रमण करती हैं सारे पृथ्वी पर और देखती हैं कि रात भर ये मनुष्य लोग क्या कर रहे हैं, तो इसलिए सभी लोग दिए जलाकर रहते हैं लक्ष्मी जी का स्वागत करने के लिए। परंतु हम लक्ष्मीपति श्री कृष्ण का स्वागत करना चाहते हैं, उनका गुणगान करना चाहते हैं और उनके सुंदर रास लीला का स्मरण श्रवण आदि करना चाहते हैं। तो शरद पूर्णिमा के रात्रि को भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में वंशी वट पे खड़े होकर उसके बाद यमुना के तट पे जाके रास लीला की थी। तो जितने भी कृष्ण मंदिर होते हैं हमारे संस्था में भी और वृंदावन में सारे मंदिरों में बहुत ही सुंदर श्रृंगार होता है। भगवान को बहुत ही मधुर ढंग से अलंकृत किया जाता है, सुंदर वस्त्र होते हैं और सुंदर सुगंधित फूलों से भी वो आभूषित होते हैं। सुंदर वातावरण होता है इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में। तो वहाँ अभी तो वृंदावन में कोई नहीं जा सकते और यहाँ भी हम लोग मंदिर में नहीं आ सकते हैं, परंतु ये दिन बहुत ही मीठा होता है सारे भक्तों के लिए। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 29वें अध्याय से 33वें अध्याय, ये 5 जो अध्याय हैं इनको रास पंचाध्याय कहते हैं, क्योंकि इन 5 अध्यायों में देव गोस्वामी ने श्री कृष्ण के रास लीला के संबंध में वर्णन किया है। रास लीला हुई कैसे, उसके पहले क्या हुआ, बीच में क्या हुआ, अंत में क्या हुआ इत्यादि। वैसे ये भगवान श्री कृष्ण की सर्वोच्च लीला मानी जाती है। इस समय जब भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात्रि पर पहली बार ये रास लीला की, तो उनकी आयु थी लगभग 8 साल और 1.5 महीने, और लगभग इसके 1 साल पहले जबकि श्री कृष्ण 7 साल 2 महीने और 7 दिन के थे, उस समय उन्होंने गोवर्धन पर्वत धारण की थी अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली पर। तो गोवर्धन लीला के लगभग 1 साल बाद ये रास लीला हुई। तो वैसे श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में 29वें अध्याय में जबकि शुकदेव गोस्वामी रास लीला के वर्णन का प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले वो भगवान अपी से शुरू करते हैं। भगवान अपि ता रात्रि शारदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। कि भगवान अभी स्पष्ट करते हैं शुकदेव गोस्वामी कि जो रास लीला करने वाले व्यक्ति हैं वो कोई साधारण पुरुष नहीं हैं, वो साक्षात तो शारद मतलब शरद से संबंधित ये शरद ऋतु 6 ऋतुओं में से सबसे सुंदर माना जाता है। वैसे इसके पहले है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के पहले है ग्रीष्म अर्थात गर्मी का मौसम, फिर वसंत ऋतु, वसंत के पहले फिर शिशिर, हेमंत, ऐसे और हैं। तो इनमें से ये
शरद ऋतु सबसे सुंदर माना जाता है। और हम देख भी सकते हैं क्यों, क्योंकि वैसे गर्मी में तो बहुत गर्मी होती है, ग्रीष्म ऋतु में पसीने छूटते हैं और इतनी गर्मी में चैन नहीं मिलता। और बरसात का मौसम जब आता है तो फिर सब जगह बारिश बारिश, बाहर नहीं जा सकते, सब जगह कीचड़ होता है, पसीना भी आ जाता है बहुत। हरियाली तो होती है खूब, परंतु कीचड़ सब जगह होता है। लेकिन जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है और शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है, तो उस समय बारिश के कारण जो हरियाली उत्पन्न हुई है वो दिखाई पड़ती है, परंतु कीचड़ आदि नहीं रहते क्योंकि बारिश नहीं रहती इस समय। तो इसलिए सब जगह सब कुछ हरा भरा रहता है और बारिश भी नहीं रहती है। ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है क्योंकि ठंडी का मौसम प्रारंभ नहीं हुआ होता है, तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं, ज़्यादा ठंडी भी नहीं, और अच्छी हवाएं बहती हैं। तो इस तरह से ये वातावरण बहुत अनुकूल था श्री कृष्ण के लिए। और इसमें मल्लिका जो फूल है, इसको अंग्रेजी में जैस्मिन भी बोलते हैं, वो उत्फुल्लित हुए थे वृंदावन में। शारद उत्फुल्ल वीक्ष्य, वीक्ष्य मतलब देखा। तो जब श्री कृष्ण ने देखा कि अब शरद ऋतु का समय है और शरद ऋतु इतने दिनों में हम देख रहे हैं कि कितना मधुर रमणीय वातावरण है और ये मल्लिका फूल आदि प्रफुल्लित हुए हैं, तो उनके मन में मनश्चक्रे रंतुम, ये इच्छा हुई इन रात्रियों को देखकर, विशेष करके भगवान अपि ताह रात्रि ही, तो इन शरद ऋतु के रात्रियों को देखकर, और जो कि बहुत रमणीय थे, श्री कृष्ण के मन में इच्छा हुई कि वो श्रृंगार रस के कोई लीलाओं का आनंद लें। तो इसलिए उन्होंने ऐसी लीलाएं प्रदर्शित की, परंतु योग मायाम उपाश्रितः। तो ये जो लीलाएं थीं भगवान की, रास लीला जो गोपियों के साथ में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं थीं, वो महामाया के अंतर्गत नहीं थीं, योग माया के अंतर्गत थीं। तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम इस ग्रंथ में श्रील प्रभुपाद जी बहुत विस्तार में और स्पष्टता से समझाते हैं कि योग माया और महामाया में बहुत बड़ा अंतर होता है। महामाया के अधीन वो जीव होते हैं जो भगवान को भूल चुके होते हैं और जो भगवान से स्वतंत्र होने का मिथ्या प्रयास कर रहे हैं, झूठे आनंद को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। सच्चा सुख कभी नहीं मिल सकता है महामाया के क्षेत्र में, परंतु भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है महामाया, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कभी भी महामाया के अधीन नहीं होते हैं। जब भी भगवान श्री कृष्ण कोई कार्य करते हैं तो वो योग माया, उनके अंतरंगा आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत होता है। इसलिए कभी भी श्री कृष्ण के कार्यकलापों को, उनकी लीलाओं को महामाया के अंतर्गत जो साधारण पुरुष स्त्रियों के कार्य होते हैं उनके समान नहीं समझना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध होता है। दुख है कि जन साधारण में ये ज्ञान नहीं है, इसलिए वो टीका करते हैं, निंदा करते हैं श्री कृष्ण और गोपियों की लीलाओं के। तो इसलिए ये पहला ही श्लोक जो है 29वें अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक बुनियाद प्रदान करता है रास लीला के लिए कि ये हैं भगवान जो लीला कर रहे हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भगवान का अर्थ है जो संपूर्ण प्रकार, जो 6 प्रकार के षड ऐश्वर्यों से संपन्न हैं, परिपूर्णता में ये ऐश्वर्य उनमें हैं,
और इसलिए उनमें कोई कमी नहीं है, किसी भी चीज़ का अभाव नहीं है उनमें। वो पूर्णतः से वो आत्मा राम है। आत्मा राम अर्थात जो अपने आप में ही अंदर ही संतुष्ट हैं। अपने आप से बाहर किसी चीज़ का आश्रय नहीं लेना पड़ता उनको सुख प्राप्त करने के लिए। तो भगवान तो परम आत्माराम है, उनसे श्रेष्ठ तो कोई आत्माराम हो ही नहीं सकता। और वैसे भी भगवान श्री कृष्ण के बाहर, भगवान श्री कृष्ण से स्वतंत्र कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है। सब कुछ उन्हीं की शक्ति है, चाहे भौतिक शक्ति हो या आध्यात्मिक शक्ति हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण आत्माराम यदि हैं, और वो हैं, तो फिर भगवान को ऐसे सुख रासलीला के द्वारा खोजने की या अपने आनंद को बढ़ाने की क्या आवश्यकता थी। आत्माराम तो वो व्यक्ति होता है जो रहता है अपने आप में, अपने आप के बाहर किसी चीज़ में सुख ढूंढने का प्रयास नहीं करता है आत्माराम। तो भगवान कृष्ण ने ऐसे क्यों किया, फिर ये प्रश्न उठाया जा सकता है। सही प्रश्न भी है। तो इसका उत्तर श्रील प्रभुपाद देते हैं कि भगवान वो व्यक्ति हैं जो षडैश्वर्यों से संपन्न हैं और उनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ये अवश्य है। परंतु षडैश्वर्य पूर्ण होने के नाते वो अपने आनंद की वृद्धि करने के लिए भी इच्छा करते हैं और इसमें कोई दोष नहीं है। किंतु क्योंकि वो जिन व्यक्तियों के साथ में, जिन शक्तियों के साथ में वो रमण करना चाहते हैं, वो उन्हीं की शक्तियां हैं, उनसे भिन्न नहीं हैं, उनसे बाहर नहीं हैं, उनसे स्वतंत्र नहीं हैं। भगवान हर दृष्टि से असीमित हैं, उनका आनंद भी असीमित है, असीमित रूप से उनकी आनंद की वृद्धि होती रहती है। इसलिए यदि हम भगवान को सीमित करने का प्रयास करें कि आप और आनंद को उत्पन्न करने वाले कार्यों को नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि हम भगवान को सीमित करना चाहते हैं। अपनी इच्छा से ऐसे लीला करना चाहते थे जिनसे कि वास्तव में उनकी आध्यात्मिक आनंद की वृद्धि हो। उनकी अंतरंगा शक्ति के कई विभाग होते हैं। वैसे तो अंतरंगा शक्ति एक ही है, परंतु ये अंतरंगा शक्ति अलग अलग कार्य करती है और उन कार्यों के अनुसार उस शक्ति को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो अंतरंगा शक्ति भगवान की चिन्मय शक्ति जब भगवान को और भगवान के भक्तों को आनंद प्रदान करती है, दिव्य आनंद, तो उसे लादिनी शक्ति कहते हैं। आह्लाद, आह्लाद का अर्थ है दिव्य आनंद। जैसे प्रहलाद का नाम, जो बहुत ही दिव्य आनंद में रमण करने वाले थे। तो ये लादिनी शक्ति की मूर्तिमान स्वरूपिणी हैं श्रीमती राधा रानी। और जितनी भी गोपियां हैं गोलोक वृंदावन में, वो श्रीमती राधा रानी के काया व्यूह हैं, अर्थात उनके दिव्य शरीर से उत्पन्न हुई हैं। तो ये सारे लादिनी शक्ति के ही अलग अलग स्वरूप हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपने ही दिव्य आनंद प्रदान करने वाली लादिनी शक्ति में ही रमण कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये कितना सुंदर समय है, सब कुछ कितना रमणीय है, और तो अब मुझे ये रासलीला करनी चाहिए। शरद ऋतु वैसे सबसे सुंदर ऋतु है ही, और वृंदावन में शरद ऋतु का आभूषण, सबसे महत्वपूर्ण आभूषण है श्री कृष्ण की बांसुरी है। उससे सारे प्राणी आकर्षित होते हैं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण गए और खड़े हुए वंशी वट पर।
आज भी वो स्थान है वंशी वट। एक वट वृक्ष है जिसको वंशी वट कहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उस स्थान पे खड़े होकर, उस वृक्ष के नीचे खड़े होकर बांसुरी बजाने लगे। तो बांसुरी की ध्वनि फैल गई चारों दिशाओं में, और ब्रज में जो गोपियां अपने अपने घरों में थीं, उन्होंने ये बांसुरी की ध्वनि सुनी। तो जब ये ध्वनि उन्होंने सुनी तो वो सब अलग अलग कार्यों में मग्न थी। कोई एक गोपी गायों का दोहन कर रही थी, तो कोई गोपी दूध को उबाल रही थी, तो कोई गोपी है वो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, तो कोई अपने परिवार के सदस्यों को भोजन परोस रही थी, तो कोई स्वयं भोजन का सेवन, प्रसाद सेवन कर रही थी, कोई अपने पति के साथ बैठी थी। तो इस तरह से ये विभिन्न जो गोपियां हैं वो ये विभिन्न कार्यों में मग्न थीं उस समय। परंतु जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनी, उन्होंने उन कार्यों को तुरंत छोड़ दिया और घर से निकल पड़े श्री कृष्ण की ओर। श्रील शुकदेव गोस्वामी ये भी बताते हैं कि वो गोपियां इतनी आकर्षित हो गईं, उनके हृदय में श्री कृष्ण का संग प्राप्त करने की इच्छा इतनी तीव्र थी, इतने वो हड़बड़ा गए उस समय कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि किस तरह से वो कपड़े पहनी हुई हैं, ये कैसे सजाया हुआ है अपने आप को। तो कभी कभी किसी एक गोपी ने जो नीचे पहनने वाले वस्त्र हैं वो ऊपर पहन लिए, ऊपर पहनने वाले वस्त्र नीचे पहन लिए, आभूषण भी एक जगह पहनने वाले आभूषण को दूसरे जगह पहन लिया। तो इस तरह से गोपियां कृष्ण भावना में इतने मग्न हो गए थीं कि उनको बिल्कुल पता ही नहीं चला कुछ। और उस समय उनके परिवार के सदस्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया। इस तरह से हमारी पत्नियां, हमारे बहुएं, हमारी बेटियां आदि जो भी हैं, वो इस तरह से सब कुछ छोड़कर तुरंत कहाँ जा रही है बीच रात में जंगल में। और उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने एक भी नहीं मानी। तो अनेक गोपियां जो हैं वो सफल हो गईं, घर छोड़ के वो निकल गईं और श्री कृष्ण की ओर निकल पड़ी, वंशी वट तक आके पहुंची। और कई गोपियां ऐसी थीं जिनको ज़बरदस्ती रोक के रखा गया वहाँ पे घर में, तो वो घर छोड़ के नहीं जा पाई। और जब वो वहाँ पर रुक गई घर में, तो उनके मन में इतना तीव्र स्मरण था श्री कृष्ण का कि ऐसे शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि उन्होंने अपना देह त्याग दिया। देह त्यागने का मतलब कि उन्होंने अपना चित्त, जो अपनी भौतिक चेतना थी, वो भी त्याग दी। तो अब ये पूछा जा सकता है कि गोपियों की भौतिक चेतना कैसी थी। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब श्री कृष्ण ऐसे रासलीला करते हैं तो उसमें दो प्रकार के गोपियां होती हैं। एक प्रकार वो होती हैं जो गोलोक वृंदावन से श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के संग अवतीर्ण हो चुकी होती हैं। तो ये नित्य सिद्ध गोपियां होती हैं, तो इनमें बिल्कुल कोई कल्मश नहीं होता है। और इनमें से अधिकतर कायाव्यूह गोपियां हैं जो श्रीमती राधा रानी के शरीर से उत्पन्न हुई हैं। तो ये सारी गोपियां तो निकल पड़ी, परंतु थोड़ी ऐसी गोपियां थीं जो इस भौतिक जगत में ही तपस्या करके, साधन भजन करके भाव भक्ति या प्रेमा भक्ति के स्तर को प्राप्त कर चुकी थी पूर्व जन्मों में। और उन्हें ये एक सुअवसर प्राप्त हुआ था कि उनका जन्म वृंदावन में किसी एक गोपी के गर्भ से हो और वो श्री कृष्ण के लीलाओं में शामिल हो सकें। तो जब इनमें से भी कई वर्ग हैं, विस्तार में नहीं कुछ चर्चा करेंगे आज। तो इनमें से थोड़े तो जा पाए भगवान कृष्ण के पास, थोड़े नहीं जा पाए, क्योंकि हो सकता है थोड़े कल्मश रहे होंगे, कण मात्र, अणु मात्र कुछ रह गया होगा अपने हृदय में, कोई कल्मश।
तो भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि उनका शुद्धिकरण पूर्णतया हो जाए। तो जब उन गोपियों के परिवार के सदस्यों ने उनको रोक लिया, तो वो वहाँ पर इतने तीव्रता से स्मरण कर अणुमात्र जो भी कुछ भौतिक कल्मश हुए होंगे हृदय में, वो भी नष्ट हो गए और पूरी तरह से चिन्मय हो गए उनकी अवस्था, जैसे कि अन्य गोपियों की अवस्था थी। तो खैर वहाँ पर वो पहुँच गए। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि श्री कृष्ण का स्मरण करने से यही होता है, श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित होने से यही होता है। श्री कृष्ण सर्व आकर्षक हैं। कृष्ण नाम का तात्पर्य ही है सर्व आकर्षक। तो जब हमारा हृदय शुद्ध होता है तो हम श्री कृष्ण से आकर्षित होते हैं। जब हृदय शुद्ध नहीं होता है, इस भौतिक जगत से आकर्षित होते हैं। तो श्री कृष्ण के का आकर्षण इतना तीव्र है कि व्यक्ति बड़े आसानी से इस संसार के आसक्ति को त्याग देता है। तो प्रभुपाद जी कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम में इस प्रसिद्ध रूप गोस्वामी के इस प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण श्लोक को दोहराते हैं। स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टिम वंशी न्यस्ताधर किशलयाम उज्ज्वलाम चंद्रकेण गोविंदाख्याम हरितनुमितः केश तीर्थोपकंठे माँ प्रेक्षिष्ठास्तव यदि सखे बंधु संगे स्थिरंगः। एक गोपी दूसरे गोपी को कह रही है कि हे सखी, वहाँ पर वंशीवट पर यमुना के तट हरि नाम के, गोविंद नाम के एक व्यक्ति हैं जो साक्षात हरि हैं। वो बांसुरी बजा रहे हैं। अपने अधरों पे उन्होंने बांसुरी धारण की हुई है और उन अधरों से वो अमृत उस बांसुरी में प्रदान कर रहे हैं और उनका चेहरा इस पूर्णिमा के चांद की किरणों से चमक रहा है। तो वहाँ बिल्कुल केशी तीर्थ में या उस वंशी वट में वहाँ पर नहीं जाना। माँ प्रेक्षिष्ठा, वहाँ ऐसे गोविंद के पास नहीं, उनको देखना नहीं। क्यों? यदि सखे बंधु अस्ति रंगः, यदि अपने सगे संबंधियों के साथ में आसक्ति है, उनके संग में रह के कुछ करना चाहते हो, तो चाहती हो आप सब, तो बिल्कुल उस गोविंद के पास नहीं जाना। वास्तव में ये गोपी जो इस श्लोक को कह रही है, वो कहना चाहती है गोपियों से कि अवश्य जाना उस स्थान में। तो गोपियों की तो दौड़ते दौड़ते सारे गोपियां चली आई यहाँ पर, और जो गोपियां घर में रह गईं, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे मैंने कहा, पूर्ण तरह से शुद्ध हो गईं और सबसे महान योगियां ये बन गईं। वैसे राजा परीक्षित शुकदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि ये जो गोपियां हैं, इनको पता नहीं था कि श्री कृष्ण परम सत्य हैं, भगवान हैं। वो ऐसे ही श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर ग्वाल बाल हैं ये समझकर उनसे आकर्षित हुए थे। तो फिर उनका हृदय ऐसे कैसे शुद्ध हो गया? तो शुकदेव गोस्वामी पुनः उनको याद दिलाते हैं कि जो उन्होंने 7वें स्कंद में उनसे कहा था, शिशुपाल का उदाहरण उन्होंने दिया और बताया कि जब कोई व्यक्ति अपने चित्त को भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित करता है पूरी तरह से, तो चाहे उसके मन में भावना जो भी कुछ क्यों न हो, यदि एकाग्र चित्त से अपना मन केंद्रित करता है, चाहे किसी के मन में काम हो, किसी के मन में क्रोध हो, किसी के मन में भय हो, तो स्नेह हो या मैत्री की भावना हो, जो भी कुछ क्यों न हो, यदि उस भावना से व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करता है, तो अपने आप ही हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और वो व्यक्ति
कृष्ण भावना भावित बन जाता है। तो खैर जब गोपियाँ वहाँ पर श्री कृष्ण के सामने, तो श्री कृष्ण ने उनको देखा कि अरे गोपियाँ आप सब यहाँ पर क्यों आई हैं। थोड़ा मजाक उड़ा रहे थे अभी श्री कृष्ण गोपियों का, और कह रहे थे कि आप सब यहाँ पर क्यों आए, यहाँ तो बहुत खतरे हैं, ये वन है, बहुत जंगली जानवर यहाँ पर हैं। और फिर आगे कृष्ण कहने लगे कि देखो, जब उन्होंने देखा कि गोपियाँ डर नहीं गई हैं, फिर आगे बात उन्होंने बढ़ाई और कहा कि देखो, अपने अपने गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को छोड़कर, इनका उल्लंघन करके इस तरह से यहाँ पर आना, ऐसे लापरवाही ठीक नहीं है, ये धर्म के विरुद्ध है, इसलिए आप अपने जगह लौट के चले जाओ। जब श्री कृष्ण ने देखा कि अब भी वो मान नहीं रही थी, तो उन्होंने कहा, अच्छा आप देखो, वृंदावन के सौंदर्य को देख रहे हो, जो शरद पूर्णिमा के रात्रि के चांद के किरणों से जो सौंदर्य यहाँ दिखाई पड़ रहा है, उसको तो अभी आपने देख लिया, तो अब देख लिया तो अब घर लौट के जाओ। तो फिर गोपियों ने अपना विरोध व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, आपको ये बिल्कुल शोभा नहीं देता, ऐसे उचित नहीं है कि आप इस तरह की बातें हमसे करें, हम सब कुछ छोड़ के आए हैं, आप हमें धर्म की बात बता रहे हैं, हमें ये कह रहे हैं कि हमें शास्त्रों के अनुसार कार्य करने चाहिए, निहित कार्यों को करना, परंतु हम समझते हैं कि आपके चरण कमलों की प्राप्ति जिसको हो जाती है, तो वो सारे धर्मों के निचोड़ को प्राप्त कर चुका होता है, इसलिए हमें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यही परम धर्म है। तो इस तरह से गोपियों ने अपना उत्तर दिया, तो श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और फिर गोपियों ने मिलजुल कर बहुत सारी लीलाएं करने लगे और वंशीवट से फिर वो यमुना के तट पे गए। वहाँ प्रत्येक गोपी के साथ वो लीला कर रहे थे। तो फिर कृष्ण ने देखा कि गोपियों के थोड़ा सा अहंकार आ गया है कि अरे हम श्री कृष्ण के साथ में हैं, श्री कृष्ण हमारे साथ लीला कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण नहीं चाहते हैं कि उनके भक्तों के हृदय में कभी घमंड आ जाए, कभी अहंकार आ जाए, तो वहाँ से वो अदृश्य हो गए। और इस तरह से 29वां अध्याय समाप्त होता है। तो 30वें अध्याय का शीर्षक है कि श्री कृष्ण गोपियों से छिप जाते हैं। जब श्री कृष्ण अदृश्य हो गए तो गोपियाँ यहाँ वहाँ भ्रमण करने लगीं, श्री कृष्ण को ढूंढने लगी, प्राय पागल हो गई कृष्ण के विरह में। और उस दिव्योन्माद में वो कभी किसी लताओं से पूछती थीं, तो कभी पेड़ों से, कभी कोई पंछियों से, कभी जानवरों से, तो कभी हवा से। इस तरह से वो पूछने लगी कि क्या आपने कृष्ण को देखा है। और ऐसे ढूंढते ढूंढते एक बार उन्होंने देखा कि अरे ये तो श्री कृष्ण के चरण चिन्ह हैं, यहाँ श्री कृष्ण आए थे। कि श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के साथ में एक और चरण चिन्ह थी, जो उन्होंने समझ लिया कि ये तो श्रीमती राधा रानी के चरण चिन्ह हैं। पहले तो उनको लगा कि अरे केवल इस गोपी को ये अवसर मिला, हमें नहीं मिला। परंतु बाद में उन्होंने देखा कि उस गोपी के चरण चिन्ह अब नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उनके मन में फिर करुणा उत्पन्न हुई कि अरे रे, जैसे हमारी दशा हुई है वैसे इस गोपी, ये अर्थात श्रीमती राधा रानी की दशा भी हुई होगी। तो इस तरह से उनको पता चला कि श्री कृष्ण ने सारे गोपियों को छोड़ा तो था, लेकिन श्रीमती राधा रानी को नहीं छोड़ा था। श्रीमती राधा रानी के साथ वो थे, परंतु बाद में श्रीमती राधा रानी से भी वो दूर निकल गए, वो अदृश्य हो गए वहाँ से भी। तो उसके बाद गोपियाँ श्रीमती राधा रानी के पास आईं और आगे बढ़ीं। और इस तरह से ये 30वां अध्याय
समाप्त हो जाता है। और 31वां अध्याय है गोपी गीत, प्रसिद्ध गोपी गीत। फिर गोपियों ने मिलकर ये सुंदर गीत गाया और जो दार्शनिक तत्वों से भी भरा हुआ है और इसमें जो एक प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, ये हमारे लिए एक आदर्श है। इसलिए जो वृंदावन का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, जो गोपियों के और व्रजवासियों के, विशेष करके गोपियों के पद चिन्हों में चलना चाहते हैं, तो वो इस गोपी गीत को बहुत पसंद करते हैं। और विशेष रूप से कार्तिक महीने में प्रतिदिन व्रज में गोपी गीत गाते हैं। तो हमारे कई संस्था के मंदिरों में भी ये गोपी गीत भक्त लोग गाते हैं, विशेष करके इस महीने में। तो उसके बाद फिर 32वें अध्याय में श्री कृष्ण लौट के आते हैं गोपियों के पास में, और सुंदर संवाद होता है उनके बीच में। भगवान श्री कृष्ण उनके संग में रहते हैं। और अंतिम जो अध्याय है रास पंचाध्याय का 33वां अध्याय, इसमें श्री कृष्ण रास लीला करते हैं गोपियों से। तो ये रास लीला बहुत ही एक गुह्य विषय है, साधारण कोई बात नहीं है ये। इसलिए रास लीला का वर्णन गहराई से इतनी आसानी से नहीं सुनना है। बस इतना हमें जान लेना है कि श्री कृष्ण ने रास लीला संपन्न की। उन्होंने अपने आप को कोटि कोटि रूपों में विस्तार किया। जितनी गोपियाँ थीं उतने रूपों में श्री कृष्ण ने अपने आप को विस्तृत किया। और हर एक गोपी के बीच और दो गोपियों के बीच में श्री कृष्ण थे। और इस तरह से ये नृत्य हुआ। न भूतो न भविष्यति, कभी भौतिक सृष्टि में ऐसी होती नहीं है, हो ही नहीं सकती, न भविष्य में भी कभी होगी। कोई भी अन्य नहीं कर सकता इस तरह की लीलाएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस रात भर ये लीला की गोपी। वैसे शुकदेव गोस्वामी ये भी बताते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने अंतरंगा शक्ति के द्वारा ब्रह्मा जी की एक रात्रि को इस एक पृथ्वी के रात्रि में सम्मिलित कर दिया, ताकि वैसे तो रास लीला ब्रह्मा जी के एक रात्रि तक चली, परंतु यहाँ इस पृथ्वी पर केवल एक रात्रि बीत गई। तो जैसे ही रात बीत गई, फिर रास लीला समाप्त हुई। सारे गोपियाँ अपने अपने स्थान में लौटकर चले गए। और ऐसे बताया जाता है कि फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद बताते हैं कि उनके घर वालों को कुछ पता नहीं रहा कि वो चली गई हैं, नहीं गई हैं। और उनके जो योग माया के स्वरूप थे, उनके जो एक माया स्वरूप थे, क्षमा कीजिए, वो घर में रहे। तो उनको पता नहीं चला कि हमारी बहुएं जो हैं या पत्नी जो हैं वो सब रासलीला के लिए चली गई हैं। तो ये महत्वपूर्ण लीला, सर्वोच्च लीला इस रात्रि में हुई वृंदावन में, यमुना के तट पे। इसलिए ये शरद पूर्णिमा का उत्सव इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। श्री शरद पूर्णिमा की जय, श्री रास लीला की जय, श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री कार्तिक मास की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।